میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، تندرستی اور صحت دی، اور آج کا یہ فضل بخشا کہ ہمیں ایک قیمتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے جو اس کی دی ہوئی زندگی ہے اس کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر کے حاضر ہوئے تاکہ ہم اس کے وہ حکموں اور اس کے جو نور ہے اس میں چلیں۔ تو آج کا جو میرے عزیزو عنوان ہے، جو مضمون ہے، جو ٹاپک رکھا گیا ہے، وہ ہے ہمیں نور میں چلنا ہے۔ ہمیں، پھر بولیے گا میرے ساتھ، ہمیں نور میں چلنا ہے۔ تو آج کا جو یہ مضمون ہے بڑا اہم ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو آج سوچیں، جانیں، دیکھیں کہ کیا ہم ابھی بھی تاریکی میں ہیں یا نور میں آ گئے۔ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 سے 7 آیات، صفحہ 327 پر ہے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 5 سے 7 آیات کا مطالعہ کریں گے کہ خداوند ہمیں آج کیا درس دیتا ہے، کہ کیا ہم مسیح ہوتے ہوئے اس پر پورا اترتے ہیں۔ سو خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ اب دیکھیے گا کہ بہت دفعہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک دیکھیں تو ہمیں نور ہی نور نظر آئے گا۔ پیدائش میں بھی بڑی یہ وضاحت سے لکھا گیا ہے، مکاشفہ میں بھی، اور تمام جتنی بھی ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا، جو یوحنا رسول ہے، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، یوحنا کے خط لکھے، یوحنا کا اور مکاشفہ لکھا، یہ سب اس کو یہ فضل خدا نے بخشا کہ اس نے ہمارے لیے راہ بنائی کہ تاکہ جیسے خدا کا بندہ زبور نویس فرماتا ہے کہ تیرا کلام کیا ہے، میری راہ کے لیے روشنی ہے اور قدموں کے لیے، تو اسی وقت ہوگا جب ہم تاریکی سے نکلیں گے۔ کیونکہ آج کا جو سرمن ہے کہ ہمیں نور میں چلنا ہے، تو جو نور میں چلتے ہیں وہ ٹھوکر نہیں کھاتے۔ خدا نے ایک پورے دن کے لیے 24 گھنٹے بنائے اور اس میں سے 12 گھنٹے تاریکی میں رات جس کو کہا گیا ہے، اور 12 گھنٹے دن جس کو روشنی کہا گیا ہے۔ اور جو روشنی میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، لیکن جو تاریکی میں یا رات کو چلتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ خدا نور ہے، خدا کیا ہے؟ نور ہے، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔
اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مکاشفہ میں کہ جو راست باز لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، مکاشفہ کہا گیا کہ ان کا خیمہ کہاں ہوگا؟ جہاں پر خداوند یسوع مسیح رہتا ہے، اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح رہتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوگی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا خیمہ جو ہے وہ ان راست باز لوگوں کے درمیان ہوگا، اور وہاں پر تاریکی نہیں ہوگی بلکہ نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ کسی بجلی کی، کسی قسم کی جو چاہے آپ بجلی ڈیم کے ذریعے سے بنائیں یا کسی اور ذریعے سے بنائیں، یا لائٹ یا ٹارچ یا نہیں، وہاں پر تاریکی کا سوال ہی نہیں، وہاں پر روشنی ہوگی۔ اس لیے کہ یسوع نور ہے، اور نور روشنی جس کو کہا گیا ہے کہ روشنی، اجالا، دن، چراغ، اور نور ان لوگوں میں اور ان چیزوں کو بھی کہا گیا ہے جو خدا کی سچائی کو بیان کرتی ہے، جو خدا کی سچائی کو بیان کرتی ہے، جو سچ بولتے ہیں وہ بھی ہمیشہ، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سچ سچ کہو، اور کلام خدا میں یسوع مسیح نے کئی دفعہ اس فکرے کو دہرایا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اور اگر وہ یہ بات ہم نہ سنیں یا نہ کہیں تو ہمارے لیے ابھی بھی تاریکی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع مسیح پیروکاروں کو نور کے فرزند کہتا ہے، جو اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، جو اس کے فرزند، ان کو فرزند کہا گیا ہے، اور فرزند وہی ہوتے ہیں جیسے خدا نور ہے، جیسے خدا میں تاریکی نہیں، اور وہ نور جو ہے پوری دنیا میں چمکتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، سب اس نے بنائے ہیں، اور اسی لیے یہ چمکتے ہیں۔ اور لیکن انسان کو بھی کہا گیا کہ تم کیا ہو؟ خدا کے فرزند ہو، اور جو فرزند ہو وہ تاریکی میں نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 5 باب کی 14 میں کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یسوع نے پہلے اپنے آپ کو کہا، تو پھر بعد میں کیا کہا گیا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو، کیونکہ تم خدا کے فرزند بن گئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ اور جب جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو وہ خدا نور ہے، تو وہ بھی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کے خداوند کا شکر ہے کہ آپ صاحب اولاد ہیں، جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی تو لڑکے اور لڑکیاں ہی ہیں، اور جو جانوروں کے ہیں وہ بھی وہ جانوروں کے بچے کہلائیں گے، انسان کے نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے جیسے اگر آپ نور میں چلتے ہیں، خدا نور ہے، یسوع نور ہے، تو پھر آپ اس کے فرزند بن گئے، اور جب آپ اس کے فرزند بن گئے ہیں تو آپ بھی نور میں۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5 باب میں کہا کہ تم دنیا کے نور، میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کے نور ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم تاریکی میں ہیں۔ تاریکی سے مراد کیا ہے؟ اندھیرا، دکھ، درد، مصیبت، اذیت میں رہنا، افراتفری میں رہنا، پریشانی میں رہنا، اور پریشانی کی جگہوں میں جا کر بسیرا کرنا، خدا کے مخالفوں کو تاریکی اور حاکموں کا نام دے دینا۔ جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق کام یا عمل نہیں کرتے وہ آج بھی اندھیرے اور تاریکی میں ہیں، وہ آج بھی اندھیرے اور تاریکی میں ہیں، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کے پاس نہیں آتے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، اور جب اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو پھر نور آئے گا۔ میں کل یا پرسوں شاید دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو وہاں پر کنگ ٹی وی کے جو پاسٹر جان ایڈی ہیں، وہ انہوں نے ایک پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے، کیونکہ وہ انگلش میں بولتے ہیں، اور ان کی مسی جو ریچل وہ اس کا
ट्रांसलेट करती है, तर्जुमा करती है, तो उसने कोई 5 लोग इकट्ठे किए यहाँ पर और एक बीच में खड़ा कर दिया और 3-4 और साइड पे खड़े किए। तो उसने कहा कि यस, और उन्होंने सबने आपस में हाथ पकड़े हुए। तो यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह अंदर आना चाहता है आपके दिल में, लेकिन अंदर और हैं, ऐब्तियां करने वाले वो भी अंदर, गुनाह करने वाले वो भी अंदर, लड़ाई झगड़ा करने वाले वो भी अंदर, और बहुत सारे बुरी बातें और बुरे काम करने वाले वो भी उसके अंदर। तो यीशु मसीह आएगा तो वो तो चारों तरफ से उन्होंने बाजू पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। तो यीशु मसीह कैसे आपके बदन में आएगा, कैसे आपके दिल में आएगा? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है, अंदर तारीकी है, अंदर रोशनी नहीं है, अंदर गुनाह है। और गुनाह या चोरी या डकैती कब करते हैं लोग? अंधेरे में करते हैं, और जाले में नहीं करते। वो कहते हैं कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला देख रहा। तो वो चारों तरफ, पहले जब हम जो हमारे अंदर गुनाह, चोरी, डकैती, बदी, ऐब्ती, लड़ाई झगड़े और गाली गलौज जो हमारे अंदर है, उसको जब बाहर निकालेंगे तो फिर यीशु मसीह अंदर आएगा, फिर यीशु मसीह अंदर आ जाएगा। और जब यीशु मसीह अंदर आएगा तो आपका बदन जो है वो रोशन हो जाएगा, आपका बदन रोशन हो जाएगा, क्योंकि वो नूर तारीकी चली जाएगी और नूर वहां पर आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हम आज भी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसकी शान और शौकत के मुताबिक उसकी इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों, मुख्तलिफ गुनाहों में, मुख्तलिफ तकलीफों में पड़े रहते हैं। और जहां पर रोना और दांत पीसना, जो अब्दी गम और अफसोस की जगह है, वो झूठे और हक और सच्चाई को जानते ही नहीं, और ना ही अपनी जिंदगी में उसको यीशु को आने देते। नाम जानते हैं, पैगाम जानते हैं, कलाम को जानते हैं, लेकिन उससे दूर हैं। तो इसलिए ये किताब जो है हमारे हाथ में, ये नूर का कलाम है, ये नूर से भरा हुआ है, ये सच्चाई से भरा हुआ है, ये अलहामी है, और इसमें से खुदा होकर बोलता है। क्योंकि लिखा है कि वो हकीकी खुदा का फरजंद और नूर का फरजंद वो ठहरेगा जिसने अपने आप को सरेंडर करके खुदा के नूर में आ गया। और अब भी बहुत से नए मजहब बन रहे हैं, बहुत से नए मजहब वजूद में आ रहे हैं, और उनका चर्चा भी हो रहा है, जो वो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। तो इसलिए मेरे अजीजों, ज़बूर हम देखें 89 उसकी 15 वर्ष, मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती, वो ऐ खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है, और तेरे करम से वो तेरा सींग ऊंचा और बुलंद करते हैं। और इसी तरह हम अगर आगे देखें कि नूर के हवाले से, तो यूहन्ना 11 बाब की 9 आयत में लिखा कि यीशु ने जवाब दिया कि दिन के 12 घंटे होते हैं, अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाएगा, वो ठोकर नहीं खा सकता, ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी ही नहीं। और यूहन्ना 12 में लिखा है 35 आयत में, यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है,
जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आकर पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो ये नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ कि नूर के फर्जंद बन जाओ। इसलिए मेरे अजीजों, मुकाशवा 21 बाब में भी और इसकी 22 आयत में भी हमें मिलता है कि खुदा ने उनमें कोई मुकद्दस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मुकद्दस है। उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलती है, और जमीन के बादशाह जो हैं वो उसको अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाते हैं, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान और शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनाहने काम करता या झूठी बातें करता हरगिज दाखिल ना हो, मगर वही जिनके नाम बरे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं वही उसमें दाखिल हो। इसलिए मेरे अजीजों, हमें देखना है कि खुदा का जो मंसूबा है, खुदा ने आपको तारीकी से निकाल कर रोशनी में और खुदा बाप के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है। तो इस दुनिया में हर इंसान का मकसद हयात है क्या? रहने का, आने का मकसद क्या है? कि वो खास इल्म या खुदा का इरफान हासिल करे जो उसको हकीकी खुदा से मिला है, और दुनिया से आजाद होकर जिंदगी गुजारे। इसलिए अगर हम देखें खुदा के जिंदा कलाम में से तो हमें मिलता है यशायाह की किताब और उसका 60 बाब और उसकी पहली ही आयत में देखो लिखा है कि उठ मनवर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तराकी उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर तलु होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायां होगा, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलु की तजल्ली में चलेंगे। मेरे अजीजों, ये पुराना अहदनामा यशायाह नबी जो है पहले ही पेशन गोइयां कर रहा, और वो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में नूर बनकर आ गए। और जब वो नूर बनकर आ गए तो उन्होंने पहला यूहन्ना उसके 2 बाब 7 से 10 आयत में हमें एक हुक्म जारी कर दिया। कहा कि ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना जो यशायाह या पैदाइश की किताब में है, वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। और ये पुराना हुक्म वही कलाम मुकद्दस है जो तुमने सुना। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में ही है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी। मेरे अजीजों, खुदा के हकीकी फर्जंद बनने के लिए हमें क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि नेमतें तरह तरह की हैं। आपके पास जो खास नेमत है उससे पूछें, खुदा के पाक रूह से पूछें, क्योंकि खुदावन
यीशु मसीह ने आपके लिए मददगार भेजा है। और बात गौर से सुनिएगा, मैं आज आपको एक और थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं कि हमारे कितने कान हैं? 2। और जबान कितनी है? 1 है। और उसके आगे जो है ये दांतों का जो है जंगला लगाया गया है। छोटी सी है लेकिन इसके आगे दांतों का जंगला लगाया गया कि इसको पार न करे, बल्कि बस। और उसके बाद 2 होंठ भी लगा दिए गए हैं कि ताकि ये खुलेंगे तो किसी मकसद के लिए। फिर भी ये छोटी सी जो गोश्त का लुथरा है ये बोलने में तेज है। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि सुनने में तेज बोलो और बोलने में हदीरे कम। सुने ज्यादा, 2 कान हैं लेकिन हम सुनते कम और बोलते ज्यादा। तो फिर जब हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है, तो हम खुदा की आवाज को कैसे सुनेंगे कि खुदा हमें पुकार रहा। ये आज अपने आप से पूछिएगा कि सुनने वाले, मिसाल की किताब में भी बहुत जगह पर भी ये इसका लिखा हुआ है, याकूब के खत में भी ज़बान का लिखा हुआ है। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि सुनने में तेज और बोलने में धीरे, ताकि हमारा जो मकसद है, जो हमारा जो खुदा के साथ राब्ता है, उसको सुने। जब आप सुन रहे हैं मेरे बातें, तो आप इसलिए सुन रहे हैं कि मैं पुलपिट पर खड़ा होकर आपसे बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूं खड़ा होकर, तो उसका आप फौरन जवाब देंगे। अगर अच्छा होगा तो अच्छा जवाब देंगे, अगर बुरा होगा तो बुरा जवाब देंगे। लेकिन जवाब जरूर देंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर जवाब देंगे। तो इसी तरह जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो अपने आप को जो दुआ की है, खुदा के हुजूर पेश की है, उसके बाद उसके सुनने का इंतजार करें। उसके सुनने का इंतजार करें ताकि वो आपके लिए क्या अच्छा फैसला, अच्छा हुक्म, अच्छा मकसद जारी करता है। हम इस पर भी गौर करेंगे। एक दिन में ये भी मैसेज है, आपको इसी वक्त इसको डिलीवर करेंगे, देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के हकीकी फरजंद बनने के लिए खुदा की आवाज को सुने। खुदा आपको जानता है, खुदा आपके नाम को जानता है, खुदा आपके काम को जानता है, खुदा आपके रहने सहने को जानता है, खुदा आपकी हर बात से वाकिफ है। तो फिर जब उससे बात करते हैं तो वो आपको जवाब देना भी जानता है, आपके साथ वो रफाकत रखना चाहता है। आपको उसने अपने कीमती खून से खरीदा हुआ है, तो जब खरीद लिया है तो वो आपको हुक्म भी करता है, वो आपको प्यार भी करता है, वो आपके लिए फिक्रमंद भी रहता है। क्या हमने कभी फिक्रमंद हुए हैं कि मेरे बॉस ने मुझे क्या कहा है? क्योंकि हम तो खून के खरीदे हुए हैं। मेरे खुदावंद ने मुझे क्या हुक्म दिया? जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो मेरे अजीजों, हम तारीकी से निकलकर क्या है, नूर में आ जाएंगे। क्योंकि नूर ही है जो हमें तारीकी से निकालता है। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं रहता। तो इसलिए नूर के फजरान बनने के लिए हमें अपने आप को खुदा की आवाज को सुनने के जो है वो जरूर हाजिर होना चाहिए। और यीशु मसीह के बारे में हकीकी और ईमान को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि उसने देखें बड़ी कुर्बानी दी। हम बार बार पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम की मुनादी इसलिए की जाती है कि उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसने हमारे लिए कुर्बानी देकर हमें कीमती खून से खरीद कर उस नूर के फरजंद बना दिया। और हमें कहा कि तुम अब यतीम बेसहारा नहीं, बल्कि खुदा के बेटे बन गए हो, बेटियां बन गई हो। अपने आप को संभालो। और पतरस, मुकद्दस पतरस तो बड़ी वजाहत से इसका बयान करता है। मुकद्दस पतरस तो बड़ा इसका वजाहत से बयान करता है। वो कहता है पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत में, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका,
मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास ममलकियत, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थी, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आया। वो वाकई इंसानी जिस्म रखता था, वो वाकई ही कामिल खुदा और कामिल इंसान था। वो वाकई खुदा आसमानी खुदा का वो बेटा है, और खुदा के कलामे मुकद्दस के हुक्मों पर वो अमल करता है। तो हमें भी उसके हुक्मों पर अमल करना और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि अबदी जिंदगी सिर्फ उनको हासिल है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। नूर में हमेशा वो चलते हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें मोहब्बत करके दिखाया और कहा, आज मैं मोहब्बत करते हुए आज आप में मोहब्बत करते हुए तुम मेरे शागिर्द हो। जान देने तक वफादार रहो तो जिंदगी का ताज हासिल करोगे, ताज पाओगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में इसका जिक्र बड़ी वजाहत से कहा गया। अगर यीशु मसीह और खुदा बाप एक हैं तो खुदा भी नूर है और यीशु मसीह भी नूर है, और जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, फर्जंद कहलाते हैं, वो भी क्या हैं? वो भी नूर हैं, क्योंकि यीशु नूर से निकला गया है। हमें नूर में जिंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह जो दुनिया का सरचश्मा है, यीशु मसीह हकीकी खुदा है, क्योंकि वो ही कायनात जब तख्लीक की गई उस वक्त खुदा बाप के साथ था, मगर उस दुनिया में इंसान बनकर आया जिसे देखा और छुआ और सुना जा सकता है। यूहन्ना अपने खत में इसलिए लिखता है कि खुदा का कलाम जिस्मानी यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में हमारे पास आया। जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, सुना और उसे छुआ, उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, और खुदा के लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और उससे माफी हासिल करके नूर में चले। यीशु मसीह के नमूने की पैरवी की सच्चाई और ईमानदारी और ईमानदार बनकर खुदा के हुक्मों को माने तो आपस में वही मोहब्बत रखेंगे जैसे यीशु मसीह अपने बाप से मोहब्बत रखता है। क्योंकि फिलिपियों 2 में भी हमें यही बड़ी वजाहत से मिलता है कि फिलिपियों के खत में खुदा किस तरह से अपने लोगों में ये इस मोहब्बत को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं फिलिपियों 2:9 इसमें लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद कर दिया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो जब वो खुदावंद है, खुदा से निकला है, नूर से निकला है, तो आपको भी उसने ये बख्श दिया कि आप भी नूर में हैं। तो जब आप नूर में होंगे तो फिर तीनों का खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस आपके साथ होगा, और इसी को तस्लीम कहा गया है। और फिर आप भी उसमें शामिल होंगे, और जब शामिल होंगे, बेटे बेटियां कहलाएंगे, तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे, कभी भी तारीकी में नहीं रहेंगे। और आपको ये भी बताते चलूं कि देखिए, एक हमें खुदा ने आंखें दी हैं, जिसकी आंखें नहीं है। बर्तनमाई की कहानी बड़ी आपने बार बार सुनी है कि यीशु मसीह यरीहो को जा रहे थे, तो बहुत भीड़ उसके पीछे थी और वो राह के किनारे बैठा हुआ, वो अंधा था,
अंधे को क्या नजर आता है? कुछ नहीं। लेकिन जब उसने अपने कानों से आवाज सुनी, तो उसने पूछा कि कौन जा रहा है, क्योंकि वो तो अंधेरे में बैठा हुआ है, तारीकी में बैठा, उसको कुछ नजर। उसने कहा यीशु मसीह नासरी जा रहा है। तो उसने क्या कहा? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मसीह, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। अंधा है। आज जो कई दफा इत्तेफाक हुआ है कि जो अनपढ़ हैं तो उनको कहते ना भाई ये पढ़े, तो कहते भाई तो हम तो अंधे, आंखें रखते हुए भी वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ने के तरफ अपनी तवज्जो ही नहीं। वो अंधा है, आंखें नहीं है, लेकिन जब उसने शोर डाला, पुकारा इब्ने दाऊद को, तो उसने जब आवाज उसके कानों में आई तो रुक गया और कहा कि कौन है? कहा जी वो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ है, वो पुकार रहा है, बुलाओ उसको। यीशु ने उससे सवाल किया कि तू क्या चाहता है? आप देखिएगा, अगर वो सुनता है तो वो जवाब देता है। देख नहीं सकता, लेकिन हमारे दो कान हैं फिर भी हम नहीं सुनते, और वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कि ऐ खुदावंद, तू चाहे तो मैं भी ना हो सकता, मुझे नूर की जरूरत है, मैं अंधा हूं, मैं अंधेरे में हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू चाहता है तो जा, तेरे लिए हो, तू चाहता है तो जा, तेरे लिए हो जाएगा। आज अगर आप चाहते हैं कि हम उस नूर को हासिल करें, तो यीशु मसीह तो बांट रहा है। यीशु मसीह ने अपने दरवाजे आपके लिए खोले हुए कि आओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, और जो चाहते हो मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हमें मांगने की जरूरत है। हमें अपने आप को सरेंडर करेंगे, उस सारे जो जितने भी गंध हमारे अंदर भरे हुए हैं उनको निकालेंगे, तो फिर हमारे अंदर नूर ही आएगा, और जब नूर आएगा तो नूर के चश्मे आपसे बचेंगे। इसलिए क्योंकि नूर जो है वो रोशनी है, और रोशनी खुदा ने आपको दी है, आपको हक दे दिया है फरजंद बनने का, नूर से निकलने का। और रोशनी में खुदा जब चलता है तो आप भी रोशनी में चलेंगे, जहाँ वो रहता है आप भी वहाँ रहेंगे, फिर किसी तारीकी की जरूरत नहीं होगी। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको थैंक यू।